Yeah, good evening, everyone, once again. And okay, let's discuss something important that is that how to prepare for CSAT. See, generally, most of the candidates, how they are preparing for CSAT is this like this that now they will study for GS. At the last month, they will go through some of the PYQs and solve some test series papers of CSAT, some coaching and do like that something which is like you are preparing CSAT in not in continuation but the way of just answering the questions or solving some of the questions. But in GS you are not doing like that. You are in GS, you are doing preparation topic wise. You are reading the topic and from the book, understanding it carefully, and then solving some of the questions based on that topic. Or you are taking class and getting the thorough concept of that topic and solving the relevant questions, then you're getting hold of that topic, then you're moving to the next topic. Like that you're preparing GS, but in CSAT you're not preparing like this. You are preparing like pick and choose types, random questions, random PYQs, and which will give you just a normal type of preparation in which you will miss many things. There will be large gaps in your preparation of CSAT, and therefore you are losing in CSAT. So main reason is this, right? So CSAT needs the complete end-to-end coverage, not the coverage with breakages or random coverages via questions, right? So करना क्या है? So what you have to do is this, that you should also have a book of CSAT, which will give you the chapter wise, details, and then questions and everything will be there like in the GS paper. So CSAT mainly, mathematics, maths, quant is there, and reasoning is there, and then you have the comprehension. So basically, comprehension, you know that how you can do it by understanding the questions and answering the question based on the comprehension given, not on your own knowledge. Okay, with your own knowledge also you can solve some of the questions of the comprehension, but you have to always rely on the comprehension or the passage given. The information given in the passage only should be used to solve the question, not your own common sense or your own previous knowledge, which may be which may be linked to the next stages as compared to the old things given in the paragraph. सो उसी क्वेश्चंस जो है ना उसका आंसर उसी पैराज में आपको खोजना है, ठीक है, विद लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस बट नॉट बियॉन्ड द कंटेंट ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश का हुआ। देन कमिंग टू द मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, दिस यू हैव टू go through chapter wise. For example, see there are you buy one book is there, Arihant book is there, सीसैट अरिहंत, you might be knowing in the market. एक ये बुक अच्छी बुक है, बाकी और भी बुक्स हो सकती है, you might have listened from some other book भी, if it is good you can go through them. So chapter wise means, like for example, if you going to the speed time distance topic, speed time distance, and that topic is there, right, chapter wise, and there are suppose four types of questions coming from the speed time distance, four types, and you are reading the whole chapter, understanding the topic and reading each and every concept and the solved examples given at that concept, concept के नीचे आपको दिया example, you are solving the solved examples, then you're solving the practice questions. So like that, one complete concept is over, you move to the next concept of the same chapter, then you understand that concept, solve the practice questions, examples and practice questions, then you move to the next, है ना, like that it is there. So like this in the speed time distance there are four concepts and there are four types of questions varieties given as examples in the respective concept, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है. This way you are completing the whole time and distance completely and it is under your grip the whole time, whole speed time distance. उसमें से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा you will be able to do it, क्योंकि आपने उसको थॉरो एंड टू एंड पढ़ लिया है. हर टाइप से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी सॉल्व. जब आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो तो वो आपको ऑलरेडी मदद करेंगे ओवरऑल कंप्लीट करने में उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग मिस करते हैं. अगर आप रैंडमली सॉल्व करते हो, यानी
पीवाईक्यू से या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपने मान ली कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। मान लिया आपने सॉल्व किया स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन सम अदर कॉन्सेप्ट ऑन द सेम टॉपिक। तो आपने वो कॉन्सेप्ट टच नहीं हुआ, यह आपने देखा ही नहीं, क्वेश्चन नहीं था तो आपने सॉल्व नहीं किया, देन दैट कॉन्सेप्ट में आप फंस जाएंगे फिर से। आप कहेंगे मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस सॉल्व किया पर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। इट इज बिकॉज you have not solved the all the concept of that topic, but you have solved just one of that topic. So ये इशू बना रहता है। ओके, सो सो इस इशू के लिए यू शुड नो दैट कि हमको कैसे करना है, ठीक है। क्लियर है ना भाई आपको कि सो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस इस तरह से। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है टॉपिक वाइज, ठीक है, बिकॉज तभी आपका वो चीज कंप्लीट हो पाएगा एंड टू एंड। आप व्हेन यू गोइंग टू सॉल्व इट्स रैंडमली, कोई भी क्वेश्चन उठा लिया सॉल्व कर लिया, तो वो गैप्स बने रहेंगे एंड बिकॉज ऑफ दोस गैप्स यू विल नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, यू हैव टू गो थ्रू द टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज फ्रॉम दैट बुक अरिहंत बुक। ये हुआ क्वांट का, तो हर चैप्टर में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, गो थ्रू दैट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, सॉल्व द एग्जांपल्स रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स का, सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और वो चैप्टर क्लोज हो गया, यू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, वहां भी सेम चीज। लाइक इट इफ यू गोइंग इन ऑल चैप्टर्स, सो क्या होगा आपको आफ्टर सम टाइम कि पूरा आपको कमांड हो गया, देन यू आर सीइंग द पीवाईक्यूज, वहां भी कमांड हो जाएगा कि अच्छा ये तो उसमें कॉन्सेप्ट में ये उसमें हो जाएगा। फिर देन यू आर सीइंग द टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस ऑफ सीसैट। फिर वहां पे जो नहीं हुआ तो आप समझें क्या क्यों नहीं हुआ, तो जो लिटिल लिटिल ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में, वो आपके क्या बोलते हैं पकड़ में आ जाएगा। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जो सीसैट का स्ट्रगल हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज इन द प्रिपरेशन। आप एंड टू एंड कवर नहीं किए, यू आर सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम रैंडम टॉपिक और रैंडम पीवाईक्यू रैंडम टेस्ट सीरीज, उसको भी जीएस तरह आपको तैयारी करनी है एंड टू एंड, ठीक है। तो एक हो जाएगा इस तरह से सीसेट विल बी कवर्ड। इसमें क्वेरी है ऐश्वर्या कोई या किसी और को भी? नो सर। क्लियर है ना? ये ऐसे करते थे क्या पहले कि नहीं करते थे? और नहीं सर, मैं तो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया पहले। हाँ, तो अगर प्रैक्टिस भी करोगे रैंडमली पीवाईक्यूज की, एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस, तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी बिकॉज आपने एंड टू एंड कवर नहीं किया है। तो कॉन्सेप्ट्स एक दो पता होंगे हर चैप्टर से, और यस टॉपिक सर। दूसरा आ जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ये क्लियर है, इसको भी जीएस तरफ तैयार करना है कंप्लीट, ठीक है। ठीक है अरिहंत सर। की बुक अच्छी है, इफ इट इज गुड आपको मार्केट में देख लीजिए, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो इवन इफ व्हाटएवर कोचिंग आप जहाँ से पढ़ रहे हो या जहाँ से आप ले रहे हो गाइडेंस, वहां से भी पूछ सकते हो, और कोई अच्छी रेलेवेंट एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आर एस अग्रवाल उस लेवल का नहीं, बिलो लेवल का नहीं, क्योंकि जैसे एसएससी का पेपर आता है उस लेवल का मत पढ़ना क्योंकि टाइम बर्बाद है। सीसेट लेवल ठीक है काफी सर। अच्छा हो गया अब, ठीक है, तो बहुत इजी विजी लेवल का कोई यूज नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज तो ये था, ये तो प्रिपरेशन लेवल का हुआ, और इसकी प्रैक्टिस जो आप रोज अभी जैसे टाइम है, दोज हु आर लैगिंग इन सी साइड, तो उनके सफिशिएंट टाइम है। ऑलरेडी आप डिस्कस की इसको, आप मैं इसको टाइमिंग कैसे रखना है मॉर्निंग टू इवनिंग मैंने बता चुके हैं, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको सबको पता होगा, किसी को नहीं पता है तो बता देना कि मॉर्निंग से आपको टफ सब्जेक्ट्स लेकर शाम को इजी तक रखना है। तो जिसको मॉर्निंग में जैसे आप जीएस वगैरह का कोई आप टफ सब्जेक्ट रख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला 4 स्लॉट में करना है, तो इवनिंग स्लॉट में आप सीसेट पढ़ सकते हैं, बिकॉज़ सीसेट क्या है कि थोड़ा-सा उतना टफ नहीं है, हल्का ही है, नॉट लाइक जीएस और ये कि पूरा पढ़ना रटना है, ये सब नहीं है। तो उसको अंडरस्टैंड करना तो आप शाम को ले सकते हैं या रात में ले सकते हैं, एज़ पर योर ओन कन्वीनियंस। तो 2 घंटा सीसेट आज की डेट में यू कैन स्टार्ट डूइंग गिविंग टाइम। तो विदिन 1 मंथ आपको 1 एंड हाफ मंथ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें, ठीक है? क्योंकि जहाँ आपने टाइम दिया जिस चीज़ को, वो चीज़ आपकी हो जाती है। ठीक है? आपको तो पता ही है, लाइफ में आपने जिसको भी टाइम दिया है, वो चाहे
वो कोई भी किताब हो, कितना भी कॉलेज हो या कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई स्किल हो या कुछ भी हो, ठीक है? इवन द पर्सन कंसर्न्ड आल्सो। तो जिसको आपने टाइम दिया वो आपका हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपने सीसैट को टाइम नहीं दिया तो सीसैट आपका नहीं हो पाएगा। सो द टाइम इज़ मतलब कम है, 100 डेज़ टाइप से हैं। सो अभी यू कैन स्टार्ट गिविंग सम टाइम एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे इन द लेटर इवनिंग और द नाइट पार्ट में आप कर सकते हो। उसमें टाइम दीजिए। सीसैट आपके पूरे कंट्रोल में हो जाएगा 1 महीने के अंदर ही अंदर। ठीक है? ऐसे ही रीज़निंग का भी चैप्टर होते हैं। रीज़निंग के भी कुछ-कुछ तरीके होते हैं रीज़निंग करने के, उसको आप देख लेना। वो भी उसमें अरिहंत मिल जाएँगे, नहीं तो किसी और बुक में भी मिल जाएँगे। एंड दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ सीसैट में ही सब फेल हो रहे हैं। जीएस का कट ऑफ गिरता जा रहा है, सीसैट का बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है मतलब इतने टफ क्वेश्चन हो गए हैं कि क्वालीफाई ही नहीं हो पा रहा है। सो सीसैट निकालिए तो सब यूपीएससी का लगभग क्या बोलते हैं 30-40% काम हो गया और फिर मेंस रह जाता है बस। ठीक है? फिर उसका इंटरव्यू तो है ही। तो ये ये चीज़ जो आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। सेकंड चीज़ क्या है कि ऑल ऑफ यू में मतलब बहुत लोगों ने मुझे भेजा, बहुत लोगों ने नहीं भी भेजा है योर शेड्यूल ऑफ डेली प्रिपरेशन क्योंकि 2 एंड अ हाफ आवर्स मैंने बोला था मॉर्निंग से लेकर पहला स्लॉट, फिर सेकंड स्लॉट तो ऐसे 10 आवर्स का लगभग शेड्यूल हो जाता है। उसको बना लेना है और उसको फॉलो करना है। कम से कम 6 डेज़ का ऑन द 7th डे यू हैव टू राइट डाउन आपको टेस्ट लिखना है। और मैंने बोला था कि 2 टेस्ट लिखना है क्योंकि इफ यू राइट 1 टेस्ट ना तो जैसे 1 टेस्ट लिखेंगे 2 घंटे का, देन यू आर गोइंग टू एनालाइज़ इट 3 आवर्स 3 आवर्स 3 साढ़े 3 आवर घंटे लगेंगे। मान लीजिए 4 घंटे लगते हैं, 6 घंटे निकल गए। 6 आवर्स के बाद आपको क्या है आप इतने टायर्ड हो जाएँगे कि आप कुछ और पढ़ेंगे ही नहीं उस दिन। मोस्टली क्योंकि हम लोग टाइम में भी हम भी यही करते थे, बाकी लोग भी यही करते हैं मोस्टली हर साल का यही कहानी है, कि एक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करने के बाद इतना थकान हो जाता है कि आदमी कुछ पढ़ नहीं पाता। तो क्या है कि पूरा दिन आपका एक टेस्ट पेपर में निकल जाता है। तो मैंने ये बताया था कि लास्ट टाइम कि आपको 2 टेस्ट लिखने हैं। पहला टेस्ट लिखिए 2 घंटे का, फिर आधे घंटा ब्रेक लिए, फिर 2 घंटे का लिखिए। दूसरा कोई और सब्जेक्ट का भी जीएस 1 मतलब जो भी पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें 2 स्लॉट्स में आप 2 अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो दोनों का टेस्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो वो फिर आप उसको बैठ के 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, आधा घंटा ब्रेक, 5 घंटा हो गया, साढ़े 4 घंटा हो गया। देन देन आपने फिर आधा घंटा लिया ब्रेक, 5 घंटा हो गया। अब आपके पास बाकी जो रिमेनिंग टाइम होगा 6-7 घंटे का, वो वो कंडेंस हो जाएगा। अब 3-3 घंटे में आपको सारा एनालिसिस कर लेना है। सो विदिन 6 आवर्स तो 5 प्लस 6 11 घंटे लगभग-लगभग, ठीक है? तो आपका पूरा दिन यूटिलाइज़ हो गया 2 टेस्ट पेपर में, यानी 200 क्वेश्चन विथ देयर एक्सप्लेनेशन, विथ 1 स्टार, 2 स्टार मार्किंग, विथ अंडरलाइन हाइलाइटिंग फॉर रिवीजन ऑन लेटर डेट्स, ये सब अगर रेडी हो गया, तो आप सोचिए कि आपको कितना उस दिन गेन हो गया, ठीक है? तो ये एक पेपर लगाने से तो सिर्फ 100 क्वेश्चन कंट्रोल में आएँगे, इसमें 200 क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सो ये आप मान के चलिए कि डोंट डू जस्ट वन क्वेश्चन, वन पेपर आउट हो गया, आप छोड़ देते हैं। कल फिर अगले हफ्ते एक तो एक-एक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सी यू हैव टू 30-40 पेपर करने हैं और भी पेपर कर सकते हैं अगर आपको और टाइम रहेगा। तो उस 2-2 पेपर करिए आफ्टर 6th डे यानी कि 7th डे आफ्टर 6 दिन पूरा पढ़ के 7th डे आपको टेस्ट देना है, 2 पेपर करिए विद एनालिसिस। तो 4 तो 200 क्वेश्चन्स का आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ़ायदा होगा और उसमें जो-जो गलतियाँ हैं वो भी पता चलेंगी and you will utilize that information or the experience वो टेस्ट लिखने के बाद in the subsequent test as well as in reading and understanding the question as well as content ठीक है तो ये सब चीजें इसमें यूजफुल रहेगी तो ये करना है ठीक है 2 टेस्ट और देखिए कोई भी कैजुअल अप्रोच लेजीनेस अप्रोच आपका पूरा साल बेकार कर देगा तो अभी जो पढ़ रहे हैं कैजुअली कुछ लोग नहीं मुझे भेजे हैं अपना जो उनका शेड्यूल है मैंने बोला 1 महीने का भेज देना है 6-6 दिन का यानी 4 वीक का भेज देना है आपको 7th डे यू विल डू द टेस्ट ठीक है? और भेज देना उसको फ़ॉलो अप करना है और मार्क्स कितने आए वो भी भेजने हैं, कितने सही कितने गलत क्या-क्या वो सब ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, आप लोग ग्रुप में तो होंगे ही। तो यूटिलाइज़ इसको अब करना पड़ेगा ये टाइम को क्योंकि यही मार्च मेन है, होली के बाद इसके बाद सब लोग प्रेशर में आ जाएँगे। अप्रैल और मई में सब लोग हेवी प्रेशर में आएँगे और इसमें सब कोई पढ़ता है। एवरीबॉडी विल रीड इन दिस टाइम सब पढ़ेंगे और उसमें कंपटीशन से ज़्यादा फर्क नहीं कंपटीशन का फर्क आप एलिमिनेट कब कर पाएंगे जब आप ये मार्च के महीने से पहले पढ़ लेंगे यानी ये जो महीना निकल गया निकल रहा है निकल गया ही ऑलमोस्ट फेब्रवरी देन मार्च ये 2 महीना जो पढ़ लिया दे विल हैव मोर ग्रिप ओवर द जो पूरा जो जो नॉलेज बेस है और पूरा जो रिवीजन है
ठीक है ना? तो ये चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। नहीं तो कैजुअल अप्रोच से कोई यूज़ नहीं है। ओके, अटेंड कर लो क्लास में, अटेंड कर लो क्लास में, अटेंड कर लो क्लास। ओके, तो एक तो ये बात है। सेकेंडली, आई हैव ऑलरेडी गिवन द अ, जो मैंने आपको डिटेल बताया था, उसमें कितने लोगों ने कितने टेस्ट लिख लिए अभी? सर अभी 4 लिख लिए हैं सर, जो पॉलिटी के है ना, शुरू के 4 लिख लिए हैं। अच्छा, शू नाइस वाला। तो शू नाइस सबको लॉगिन हम्म। मिल गया? हाँ सर। सबको लॉगिन मिल गया? तो ठीक है फिर सबको मिल गया तो 4 लिख सर वो लिए सी और सी सेट का भी, हाँ वो हुँ, सी सेट वाला भी जो टेस्ट वो भी प्रोवाइड करा देते हैं ना सर, तो सैटरडे संडे एक एक टेस्ट लिख लेता सर उसका भी। हाँ, मैं सीसेट का बात कर लेता हूँ। सीसेट का भी लॉगिन आईडी मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको क्या इश्यू हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? टेस्ट लगाने में? बहुत कम लोग टेस्ट लगा रहे हैं और टेस्ट लगा के मुझे मार्क्स नहीं भेज रहे हैं। लेवल बहुत अच्छा है सर। हुँ? सर मैं तो आपको रेगुलर भेज देता हूँ सर। हाँ, हाँ। बाकी कुछ मार्क्स कुछ में। देखिए मार्क्स भेजेंगे ना तभी आपको मालूम चलेगा कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, कैसे उसको ठीक करेंगे। ठीक है अभिषेक और भी करिए, अभी तो जैसे 4 कर लिया रघुनंदन ने और भी लोग अब तक तो 4-5 हो जाने चाहिए। एक्चुअली फरवरी महीना निकल गया तो अभी 1 ही टेस्ट लग रहा है, 2 लग रहा है तो बहुत टाइम कम है एंड यू हैव टू स्पीड अप। सर हुँ, सर जैसे अभी शून्य के टेस्ट में ना, अब इसके पॉलिटी के बाद इकोनॉमी है, हुँ, और इकोनॉमी मेरे को अभी 4-5 दिन और लगेगा उसको कंप्लीट करने में। हुँ। तो एनवायरनमेंट मेरा हो उस चुका है, केस तो में मैं सोच रहा हूँ सर सीसेट आगे लगाना का बेस्ट। इसका स्किप करके आगे पहुंच जाऊँ सर, 10, 11, 12 जो। हाँ, हाँ, आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। सब तो करना ही है देर सवेर। क्योंकि यू कैन क्योंकि प्रोसीड टू द क्योंकि नेक्स्ट सर लेवल। क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट जो है सर, ये मैंने कर लिए है अच्छे से इसको। हुँ, तो मैं हुँ। सोच रहा हूँ इसके टेस्ट पहले जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ, हिस्ट्री के बाद में करूंगा। अच्छा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, तो ये 1 स्टार 2 स्टार मार्क हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे 70-30 मतलब आता है, अच्छा। ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन नहीं आता है। हुँ, बट हुँ। सर ये जो, हाँ, और हुँ, कुछ हुँ। कुछ में क्या हो रहा है ना सर, जब टेस्ट लगा रहे हैं तो जैसे 3 स्टेटमेंट है, तो हुँ, 2 स्टेटमेंट जो सोच के सही लगाया था, तो ओनली 2 तो आंसर उसका भी सही है। और जब हुँ, चेक करता हूँ तो ओनली 2 किसी और वजह से हो जाता है, वो 2-4 क्वेश्चन उसको भी मैं गलत ही मान लेता हूँ सर। हुँ। देखना इसमें एक चीज़ और देखना सबके लिए बता रहे हैं कि जो टू-टू जो आप जो-जो उसको एलिमिनेट कर रहे हैं और जो तुक्के से सही हो रहे हैं, तो डोंट कंसीडर इट कि मतलब अभी तो मार्क्स में भले ही जोड़ लीजिए, लेकिन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन पार्ट प्रॉपर्ली कि क्यों ऐसा क्या गलती हो गई? मतलब मेरा तुक्का लग गया तो सही तो हो गया, बट हुँ, वो क्या उसके बीच के पीछे क्या कंटेंट है, हुँ, क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको गो थ्रू करिए, अंडरलाइन हाइलाइट कर लिए और 1 स्टार या 2 स्टार मार्क कर दीजिए उसको बिकॉज़ वो हो सकता है यहाँ सही हो जाए पर एग्ज़ाम में नहीं हुँ। सही होगा उस टाइम पे उस टॉपिक से क्योंकि आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी उतरी बट एलिमिनेशन में कई-कई बार तुक्के भी लग जाते हैं, कई बार नहीं भी लगते हैं। तो दोनों केस में उसको देख लेना है। सर ए हुँ, सर एक इश्यू ये आता है, जैसे ये 50 मार्क्स का मतलब 50 क्वेश्चन वाला जो टेस्ट है, हुँ। इसमें क्या है कि टाइम मैं 50 मिनट अलॉट करता हूँ इसको, क्योंकि मैं ओएमआर अभी भर नहीं रहा। अच्छा, 50 ठीक है। मिनट लेता हूँ। हुँ, पर हुँ। वो 3 राउंड पे नहीं पहुँच पाता है सर वो। 3 राउंड लग नहीं पाता उसमें। और क्योंकि सर सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं, जो मैंने गलत मैंने सोचा कि इसको बाद में करूँगा, तो अगले राउंड में सही हो जाता है। वो थर्ड राउंड पे पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ सर मैं। फर्स्ट मैं बता देता हूँ सारे राउंड का क्या होता है सब राउंड में। देखिए हुँ, जो 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 कि एक्चुअल एग्ज़ाम में होता है वो मैं बताता हूँ 2 आवर्स में। तो जब भी आप करेंगे जब भी आपको पेपर मिलेगा तो यू विल गो टू द आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हैं। मतलब क्वेश्चन पढ़े, आंसर पढ़े आपको सब पता है, चारों चारों ऑप्शन क्लियर है कि अब वो क्या आंसर है। तो क्वेश्चन पढ़े और सीधे आंसर पढ़े, उसमें टिक मार दिए क्वेश्चन पेपर पे। उसके बाद अगले अगले पढ़े, अगला जो पेज पलटे उसमें मतलब अगला कर लिए। तो ये फर्स्ट राउंड में जब आप करेंगे, जल्दी-जल्दी करना होगा इसमें। जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है, जिन क्वेश्चनों में ये सब तो मैं वैसे भी बाद में बताता कुछ दिनों बाद, 1-2 वेबिनार के बाद। लेकिन अभी चूँकि पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ, कुछ लोग प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं ऐसा। बाद में भी तो आपको करना ही है। जस्ट मार्च में बताने का मेरा है कि कुछ क्वेश्चन लगा लिए तब मैं बताता हूँ। तो जो भी आप
जो आपको 100% आते हैं, आप उसको टिक मार दिए क्वेश्चन पेपर पे एंड यू आर वेरी श्योर कि आपको पता है, तो यू कैन साइमल्टेनियसली मार्क इन द ओएमआर शीट आल्सो, ठीक है? तो वो भी मार्क हो गया। उसके बाद ऐसे करते-करते आपके मतलब क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर छोड़ देंगे तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जो बोले ना टाइम नहीं बचता है, उसका कारण ये है कि आपने उसको पूरा पढ़ा, फिर आपको लगा यार इसमें डाउट है, छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। तो फिर जब दोबारा आते हैं तो आप उसको गो थ्रू हाँ फिर सर, 2 यही मिनट मेन लगे, इश्यू है। पहले 2 मिनट लगे, फिर 2 मिनट लगे। ऐसे करके कुछ एक क्वेश्चन ऐसे कुछ होंगे ऐसे 10-15 क्वेश्चन जिसमें दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है। तो वो आपका टाइम खा लेगा और आपको ये लास्ट में थर्ड राउंड में टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या होता है जो फर्स्ट राउंड में क्या होता है, यही टाइम बचाना है फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में ज़्यादा टाइम लगता है। फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन देखा और मालूम है कि उसका आंसर क्या है और बस क्वेश्चन को से देखा और सीधे ठीक से पढ़ा और उसको टिक मार दिया। तो फर्स्ट राउंड में आप अराउंड 35 टू 40 मिनट्स में आप 30-35 क्वेश्चन कर लेंगे। कम से कम 35 क्वेश्चन और 40 से कम ही रहता है जहाँ तक। 35 30-35 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर लेंगे। उसमें भी 2-3 गलत हो सकता है, सर, ये योर तो वॉइस इज भगवान का ब्रेकिंग। फैसला है ना? तो ये प्रोसेस में क्या होगा, जब क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पता है तो पढ़ लिया, तो उसको टिक मार दिया। अगर उसको पूरा पढ़ेंगे और फिर कहेंगे नहीं इसमें डाउट है, छोड़ेंगे फिर दोबारा से पढ़ेंगे पूरा तो उसको टाइम लग जाएगा। तो एक 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 सरसरी निगाह से ग्लैंस के थ्रू आप उसको स्कैन करके जान लेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है? तो ये करेंगे तो टाइम बच जाएगा। अब मैं बताता हूँ पहले राउंड में ये हुआ कि जो आता है वो कर लिया, उसके बाद वो कंप्लीट हो गया, मूव टू द नेक्स्ट राउंड, मतलब ये 35 मिनट 40 मिनट्स हो गए, फिर आप दोबारा उन क्वेश्चन करेंगे जो आपको लग रहा है कि 50-50 है, यानी जिसमें 2 एलिमिनेट हो गए, 2 बचे। ठीक है? या फिर 1 एलिमिनेट हो गया, उसको भी करनी उसको नहीं करना है अभी इस वाले राउंड में, 2 एलिमिनेट हो गए, उसे करना है। पहले वाले में तो जो आता है वो मार दिए। इसमें 2 एलिमिनेट हो गए। नाउ यूजिंग योर होल जो भी आपने पढ़ा है, क्युमुलेटिव नॉलेज एंड अदर कॉमन सेंस और व्हाटएवर जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आप उसको पूरा पढ़ोगे, एलिमिनेट करोगे 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन में से एक को आप चूज़ करोगे जो आपको लगता है ये उस मतलब उन दोनों में से ये बेहतर ऑप्शन है। कई बार ये गलत भी हो जाता है, पर पर आपको तो नहीं पता सही है गलत है। बट वो आपको चूज़ करोगे और आप उसको मार्क करोगे, है ना? और यू कैन मार्क इट इन द ओएमआर शीट आल्सो इफ यू आर वेरी श्योर उसी समय। ठीक है? क्योंकि बाद का टाइम मिलता नहीं है। जैसे बोले ना 10 मिनट लास्ट में मार्किंग, वो मैं बताऊँगा फिर से एक बार अभिनंदन की लास्ट में ओएमआर शीट मार्क करना बहुत महँगा पड़ सकता है। बहुत लोगों को पड़ता है महँगा, है ना? उसमें गलतियों के चांस बहुत होते हैं, क्वेश्चन एलिमिनेशन के चांस बहुत होते हैं और जल्दीबाजी में बहुत एरर हो सकती है और क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। बहुत सी चीज़ें उसमें हैं, तो वो साइमल्टेनियसली मार्क करने वाला ही कॉन्सेप्ट होता है जीएस में और सीसैट में भी। ठीक है? दोनों में यही चलता है। अगर आप में डिले है, तो या तो क्वेश्चन छूट जाएँगे या गलत मार्क हो जाएँगे, कुछ भी हो जाएगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो गलती आपने करी हुई है ना? तो ये बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए साइमल्टेनियसली आपको मार्क कर देना है सेकंड राउंड में भी। व्हाटएवर अभी गलत सही तो आपको नहीं पता है, लेकिन आपने 2 एलिमिनेट किया, 2 में से 1 आपने चूज़ किया और मारा। तो सेकंड राउंड में भी आपको 30-40 क्वेश्चन हो जाएँगे। तो सब मिला के यहाँ आपके हो गए लगभग 70 क्वेश्चन क्रॉस हो जाएँगे। ठीक है? लेकिन 70 से होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि उसमें कुछ गलत भी है इसमें एंड यू नेवर नो कि कौन-सा गलत है। तो देन यू हैव टू गो फॉर कि 85 प्लस, एटलीस्ट 85 प्लस आपको रखना पड़ेगा टू बी ऑन द सेफर साइड। या 80 प्लस भी रख सकते हैं इफ यू आर एट वेरी गुड, मतलब एक्यूरेसी है आपकी अच्छी है तब। नहीं तो 85 प्लस मानिए, 90 प्लस भी जा सकता है। 95 के ऊपर की ज़रूरत नहीं है, 91, 92, 93 ऐसे करके 85, 86, 87, 84, 85 ऐसे करके। सो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको थर्ड राउंड में भी आप आएँगे। थर्ड राउंड में क्या होता है कि यू आर एबल टू एलिमिनेट 1 ऑप्शन, 3 बचता है। 3 में भी अगेन यू आर अप्लाइंग योर माइंड एंड एक और आपने एलिमिनेट कर लिया कैसे भी। तो 2 बचेंगे, उन्हीं में से आपको एक मार्क करना है। तो थोड़ा ये 50-50 होता है। या मान लीजिए 30% की प्रोबेबिलिटी है, 33% की प्रोबेबिलिटी है इसमें। ठीक है? कि जैसे एक एलिमिनेट हुआ तो 3 बचे, तो तीनों में 33% की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो थोड़ा-सा ये थर्ड राउंड रिस्की रहता है कि आपका 100% या चांसेस ऑफ सही मार्क करने का चांस कम रहता है क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 राउंड में तो ठीक मार्क किया होगा। तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है, इंट्यूशन को भी समझना है एंड योर ओवरऑल नॉलेज, कॉग्निटिव नॉलेज सब इन्फॉर्मेशन को लेते हुए ही आपको ये मार्क करना है, तभी ये निकल पाएँगे यहाँ से। तो उसमें लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन होंगे और आप मारते-मारते सही भी किए, तो 10 10-12 क्वेश्चन आप कर पाएँगे। क्योंकि क्योंकि बहुत से अननोन से रहते हैं ना।
12-15 अगर 70 किए हैं तो 15 तक मार लिए, 85, 86, 87 डिपेंड करता है ना? नहीं तो आप अगर 75 तक किए थे स्टार्टिंग में देन आप 90 तक खींच पाएँगे आराम से और उसमें आपको करेंगे तो ये थर्ड राउंड चलेगा। तो पहला वाला 35 टू 40 मिनट्स का होगा, सेकंड भी 35 टू 40 होगा। ये वाला थर्ड राउंड छोटा होगा, 15 मिनट का ही होगा। बिकॉज़ आपने साइमल्टेनियसली आपने मार्क कर लिया, लास्ट के 5-10 मिनट बच जाएँगे, तो यू कैन हैव योर ओन कि कैसे क्या करना है। अगर नहीं बच रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी यूटिलाइज़ हो रहा है कहीं न कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और कोई भी क्वेश्चन जो जो सही मार्क कर दिया है क्वेश्चन पेपर पे, तो ओएमआर शीट में आना चाहिए। उसके लिए आपको साइमल्टेनियसली ओएमआर शीट मार्किंग करनी है। ये सब मैं बताऊँगा और बताऊँगा एग्ज़ाम के पहले भी बहुत बार बताऊँगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। सब तरीके से बताऊँगा, है ना? हर तरीका क्या-क्या इसमें लोग तरीके से करते हैं, तो क्या आता है, क्या नहीं होता है, हर प्रॉस, कॉन्स, प्रोबेबिलिटी सब चीज़ बताऊँगा। अभी तो आप मैंने कुछ भी नहीं बताया, आपको जस्ट मैंने पढ़ाई करने का तरीका बताया है, कि कैसे आपको अभी टाइम पढ़ना है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है अभी। पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो मैं सब बताऊँगा, ए टू जेड। जीएस का भी बताऊँगा, सीसैट का भी बताऊँगा, है ना? हर तरीके से आपको 1-1 मिनट कैसे यूटिलाइज़ करना है, सब चीज़ बताऊँगा। अभी तो बहुत वेबिनार होने हैं, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, है ना? बीच में 1-2 दिन वेबिनार नहीं हो पाता है, वो थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, तो वो मिस होता है तो आई विल कवर इट, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। मार्च में आपको काफ़ी टिप्स बता दूँगा, अप्रैल में सबकी प्रैक्टिस करवा दूँगा सारी टिप्स की और मई तक आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाओगे कि अब एक को आपको लिखना है एग्ज़ाम और यू आर जो आपका कॉमन सेंस है, जो ये पेपर में मैक्सिमाइज़ करना है स्कोर, वो सब मैं जो भी तरीका टिप्स है बता दूँगा। अभी के लिए आपको तो पढ़ना है। अभी तो आपको टिप्स उसका तो बाद का नंबर है। जब आपको सब नॉलेज रहेगा तब ना टिप्स होगा। अगर आपकी नॉलेज ही नहीं है, आपने अभी ठीक से पढ़ा ही नहीं है, अभी तो पढ़ ही रहे हैं, अभी तो रीडिंग चल रही है, देन यू डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन बेस टू सॉल्व द क्वेश्चंस करेक्टली। सो उसमें टाइम लगता है ना, तो इसलिए अभी हम मेरा फोकस है कि आप लोग 8 घंटे से 10 घंटे ज़रूर निकालिए। 4 स्लॉट में निकालिए, ये कैसे निकालिए और 2-2 टेस्ट हर हफ्ते लिखिए। तब तो आप उस लेवल पे पहुँचेंगे कि यू आर एबल टू क्वालीफाई द एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? तो अभी वो लेवल अचीव नहीं हो पा रहा है। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। सीसैट का 2 घंटा लगा निकालिए। कुछ भी करिए बस पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपको 3 ही महीने पढ़ना है, मान के चलिए। एक बार प्रीलिम्स निकल गया तो उसके बाद सिर्फ 3 महीने और पढ़ना है। तो 6 महीने 7 महीने की पढ़ाई है। तो 6-7 महीने की पढ़ाई से अगर आप आईएएस बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, ज़िंदगी का जो है ना, इंडिया में आप रह रहे हैं तो जो टॉप मोस्ट पोज़ीशन है सरकार का, वो अचीव कर सकते हैं और बाकी की लाइफ़ खुशहाल रह सकती है, तो इससे आसान क्या है? 6 या 7 महीने की मेहनत से अगर कोई आईएएस बन सकता है, तो इतना टाइम में तो उसका कोई बिज़नेस नहीं खोल सकता बढ़िया, कोई नौकरी में उसको उतना सक्सेस नहीं मिल सकता, 6-8 महीने में, कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। यही 6-8 महीना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, आपकी जीवन भर की तपस्या जो आपने अभी तक करी है, जो पढ़ाई करी है, टिल नाउ, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, व्हाटएवर स्ट्रीम यू हैव स्टडीड एंड व्हाटएवर है ना, आप पढ़ने के बाद आपको जो फ़ोकस करने को बोला गया घर की तरफ से, अपनी तरफ से, आप कुछ पाना चाह रहे हैं, तो अब 3 महीना नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? अभी जो नहीं पढ़ा तो उसका तो फिर अब अगर जो यहाँ मार्च में नहीं पढ़ा तो फिर अप्रैल, मई तो कुछ नहीं होने वाला है। वो तो सिर्फ टाइम पास करेगा, पढ़ने वाला, पढ़ने की एक्टिंग करेगा कि पढ़ रहा है, लेकिन उसको खुद पता है कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? क्योंकि जब आपको अंदर से पता चलता है कि मेरा हो रहा है प्रीलिम्स, तभी प्रीलिम्स होता भी है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत लोगों को होता है, जो लोग प्रीलिम्स लगातार निकाल रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता है। जो लोग तैयारी बढ़िया कर लिए हैं, उनको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। सो ये सब जो फीलिंग है, वो एग्ज़ाम देने वालों को आ जाती है ना? सो सो यू तो अभी ये मान के चलिए कि ये एकदम नेचुरल फिनोमेना है, कि ये आपको तैयारी का जो प्रोसेस है, वो करते-करते आ जाएगा। ठीक है? तो अब मुझे बताइए कि हाउ मेनी ऑफ यू विल बी सेंडिंग विद योर टाइम टेबल? आज या कल तक भेज दीजिए, ठीक है? टाइम टेबल भेज दीजिए एंड फॉलो करिए उसको 6 दिन, 7th डे राइट ऑन द टेस्ट। इतना करिए, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका शेड्यूल सब खराब हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि अभी मैं यही बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। उसके बाद बताऊँगा पेपर कैसे सॉल्व करना है। फिर कैसे क्वेश्चन जो टफ आते हैं उनको कैसे डील करना है। ओएमआर शीट में कब भरना है, कैसे छोड़ना है, क्या तरीके से कुछ एक टिप्स भी हैं उसकी, ओएमआर शीट की और इवन कुछ तुक्के मारे की जो टिप्स भी हैं, वो भी मैं बताऊँगा। कुछ एक वेल नोन लोग हैं जिनकी टिप्स हर साल काम आती है लोगों को, वो भी बताऊँगा।
ठीक है, मैं अभी तो बहुत चीज़ बताना है, लेकिन आप जब पढ़ाई करके बैठेंगे तभी ना बता पाऊँगा। अभी तो पढ़ाई भी नहीं करी किसी ने, अभी तो मेंस ही चल रहा है कुछ लोग का। तो अब मेंस कंप्लीट करिए फ़रवरी तक, फिर प्रीलिम्स में आइए टोटली 100% मार्च तक। मार्च में टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से पढ़िए, अपने हिसाब से पढ़िए। मार्च में आपको कुछ एक टिप्स बता दूँगा इम्पोर्टेंट वगैरह जो है, और उसमें जो 2-3 वेबिनार होंगे वो बता दूँगा। फिर अप्रैल में आपको सारा एग्ज़ाम लेवल का मई तक आपको प्रैक्टिस करना है। तो टारगेट रखना है आपको कि अप्रैल एंड में यू हैव कंप्लीटेड ऑल द सब्जेक्ट ऑफ, मतलब जो कोर्स है प्रीलिम्स का मोटा-मोटी इट्स ओवर इन टिल अप्रैल। मतलब 30 अप्रैल जब होगा, जब आपका प्रीलिम्स तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। है कि नहीं? अगर नहीं हो पाएगी तब कब होगी फिर? फिर तो एंड ही नहीं होता। पहली बात तो प्रीलिम्स का कोर्स इतना है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू फिनिश ईज़िली। वो आसानी से पूरा नहीं होगा और कैजुअल अप्रोच में बिल्कुल नहीं होगा। तो धीरे-धीरे भी तो अगर अभी टारगेट नहीं रखेंगे अप्रैल तक का, तो कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है। ओके? तो टारगेट रखना है अप्रैल एंड, तब तक मोस्ट ऑफ द टेस्ट पेपर्स लगा लेने हैं, और जो-जो चीज़ है, जो-जो बताया मैंने, वो सब कर लेना है। ठीक है? आपको टेस्ट पेपर लगाने हैं, 1 स्टार, 2 स्टार क्वेश्चंस मार्क कर लेना है, एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ लेना है, अंडरलाइन, हाइलाइट कर लेना है, और उसके अलावा यू हैव टू राइट ऑन द टेस्ट ऑन द 7th डे। 2 टेस्ट लिखने हैं विद एनालिसिस, अंडरलाइन, हाइलाइट करके मार्क करके रख देना है, टू बी रेड 15 डेज एंड 45 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है। सो ये सब आप मुझे करके दे रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीक का बताएँगे कितने मार्क्स आए, किस टेस्ट में क्या, और कल तक आप ना पढ़ाई का शेड्यूल भेज रहे हैं मुझको, 4 स्लॉट्स का, ठीक है? और मुझसे वेरीफाई करा लेंगे, हाँ, ये सब पढ़ेंगे। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एंड आल्सो डू द टेलीग्राम आल्सो, दोनों भेज दीजिएगा। सो आई विल सी बोथ ऑफ देम। जब मैं जो जब खुल जाएगा तो मैं उसमें देख लूँगा, रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ठीक है? अब बताइए एनी क्वेरी? क्योंकि अभी तो मैं आपको पढ़ना कैसे वो बता रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वेबिनार बताना और आगे का चीज़, है ना? आई विल टेल दैट आल्सो। अभी के लिए आप पहले मुझे टेस्ट करके दिखाइए, 2 टेस्ट विद योर मार्क्स, और 1 हफ्ते का शेड्यूल दिखाइए। कुछ आप लोग भी करिए पहले, तब मैं फिर बताऊँगा क्या और क्या करना है आगे, राइट? ठीक है, कोई क्वेरी है तो बताइए? 4 स्लॉट्स। अच्छा मोनिका, मैंने अटेंड नहीं हाँ किया सर, ये पहले मेरा भी पहले डाउट है। वेबिनार। हाँ, रघुनंदन। सर ये है ना कि मैं स्लॉट्स में इतना नहीं पढ़ पाता। मेरा क्या है कि एक स्ट्रेच में पढ़ाई जो होती है ना, जैसे मान लो सुबह में 4 साढ़े 4 बजे उठ गया, तो हुँ। एक 6 घंटे का स्ट्रेच जो होता है ना, उसमें एक सब्जेक्ट, फिर दोपहर अच्छा 12 ठीक है, बजे के बाद से मतलब कोई कि बात शाम। नहीं। तो जैसे जो पढ़ते हो ना, मान लो भई 2 स्लॉट मिला लिए होगे, भई 2 स्लॉट है 3-3 घंटे, हुँ, 6 घंटे का स्लॉट हो गया, है ना? कंप्लीट हुँ। स्लॉट हो गया। तो कोई बात नहीं, वही भेज दो मुझे कि क्या पढ़ रहे हो और क्या टेस्ट लिखोगे, उसी स्लॉट के हिसाब से टेस्ट लिखोगे जो पढ़ रहे हो, तो पता चल जाएगा, ठीक है? वही भेज दो। एटलीस्ट भेज के मेरे को ट्रैक रहेगा ना, ठीक है? और सर ये कुछ टेस्ट के अलावा सर जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक वाइज मेरे पास हैं, हुँ। उसको भी साथ के साथ करते रहता हूँ। ये जैसे मेरा थर्ड रिवीजन चल रहा है सर, तो थर्ड रिवीजन उस टॉपिक को पढ़ के उसके क्वेश्चंस भी लगा के फिर फाइनली 7 तारीख को मतलब हर संडे टेस्ट दे रहा हूँ सर। अच्छा, रिवीजन स्टार्ट हो गया? हाँ, रिवीजन सर, ये हाँ, 2 रिवीजन पहले हो चुके थे, तो ये थर्ड रिवीजन में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। मेरे पास फोरम आईएएस के वो हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको भी करता हूँ, वहाँ से रिवीजन हो जाता है, प्लस हुँ। अपना स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ के फिर फाइनली टेस्ट देता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, मोनिका, सो यू आर नॉट प्रेजेंट इन माय लास्ट टू लास्ट क्लास? वो सब नहीं पता है क्या क्या स्लॉट का कॉन्सेप्ट है? नहीं पता तो मैं पूरा बताता हूँ एक बार। जस्ट वांटेड टू नो कि थोड़ा भी पता है कि कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, एनीवेज रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। अच्छा, मिस कर गए थे, ठीक है। देखो मोनिका, इसमें क्या है कि देयर आर 4 स्लॉट्स,
मैंने बताया था, एक बार सबको बता दें, किसी को अभी याद नहीं हो। तो जनरली मैंने बताया था कि अपने टाइम को यू हैव टू डिवाइड इन 4 स्लॉट्स, मॉर्निंग टू इवनिंग या टिल टिल यू स्लीप, आफ्टर वेकिंग अप से लेकर सोने तक। सो एटलीस्ट 2 एंड ए हाफ आवर का 1 स्लॉट हो या 3 घंटे का हो तो भी चलेगा, 2.5 घंटे से कम नहीं, उसके उससे कम तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, हो नहीं पाता है। तो 3 घंटे के आसपास का फर्स्ट स्लॉट है, 2.5 से 3 घंटा। अगर आप 2.5 घंटा मान रहे हैं तो ऐसे 4 स्लॉट होंगे तो टोटल 10 आवर्स की स्टडी हो जाएगी मिनिमम। एंड पहला पहला स्लॉट मॉर्निंग में होगा, है ना? मतलब उठते ही करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा, बीच में ब्रेक्स रहेंगे। तो वो यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल शेड्यूल, आप बना सकते हो। और उसमें यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रिपरेशन जो आप करेंगे ना, जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसको टफ से ईज़ी करना है। जैसे मॉर्निंग में यू आर वेरी गुड एट ग्रास्पिंग, फोकस, है ना? और बहुत आपका फोकस रहता है, मोटिवेशन रहता है, ये रहता है। तो आप पहला जो टफ सब्जेक्ट है, उसको आप लेंगे मॉर्निंग में। मे बी आपको जैसे आर्ट एंड कल्चर है, काफ़ी बोरिंग टॉपिक है, तो उसको रात में नहीं लेके सुबह लेंगे, सुबह स्लॉट में। रात में लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे। तो इसलिए मॉर्निंग स्लॉट में लेंगे, ताकि आपका जो फ्रेशनेस है, आपकी एक्टिविटी, आप पूरे एक्टिव हो, फोकस हो, तो उसको आप फर्स्ट में ही देख लेंगे, मॉर्निंग में ही। तो वो आपका जल्दी याद होगा, जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है? तो ये पहला डिक्रीजिंग मतलब ऑर्डर था ऑफ टफनेस या बोरिंग, मतलब जो टफ हो या बोरिंग सब्जेक्ट हो पहले मॉर्निंग से लेकर शाम तक ईज़ी हो जाएगा। तो पहला 2 सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आपने 2 पहला स्लॉट में ये पढ़ लिया मॉडर्न इंडिया, सेकंड स्लॉट में कुछ और ज्योग्राफी पढ़ लिया या जो भी आर्ट एंड कल्चर कुछ पढ़ लिया। देन थर्ड स्लॉट में यू कैन गो फॉर सम ईज़ी सब्जेक्ट्स, लाइक करंट अफेयर्स देख सकते हो। ठीक है? फोर्थ स्लॉट में यू कैन गो फॉर द सीसैट प्रैक्टिस, इवन रीडिंग द न्यूज़पेपर आल्सो। न्यूज़पेपर क्या है, बहुत ईज़ी चीज़ है। मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो इट विल वेस्ट योर टाइम, 2 घंटा आपका हो जाएगा और आप थक भी जाओगे। तो उसको इवनिंग पढ़िए, बहुत ईज़ी है। हेडिंग हेडिंग पढ़ लेना, क्या-क्या कुछ इंपॉर्टेंट अंदर पढ़ लेना है। सो एक जल्दी-जल्दी हो जाएगा, 1 घंटे में निपट जाएगा और उसका उसका थकान भी नहीं होगा। मॉर्निंग पढ़ेंगे तो पूरा 2 घंटा निकल जाएगा और आप टायर्ड भी हो जाएंगे और फोकस भी डाइल्यूट हो जाएगा नेक्स्ट जो स्लॉट में जो भी पढ़ेंगे। इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द जो सब्जेक्ट टफनेस है या बोरिंग जो एक्टिविटी है उसको आप ऐसे करेंगे। ठीक है? तो ये आप करेंगे तो आपको शाम की जो एनर्जी होगी, जो डिक्लाइन हो चुकी है या लेस फोकस हो गया, उसमें आप ईज़ी सब्जेक्ट को कैप्चर कर पाएँगे इज़िली। है ना? जैसे अखबार हुआ, करंट अफेयर्स हुआ। ठीक है? तो ये है 4 स्लॉट की कहानी। अब 4 स्लॉट में जो भी पढ़ेंगे, वो मैंने उसका बड़ा बोला है कि सबको सब अपना टाइम टेबल बना के दे देना है। सो 2.5 घंटे या 3 घंटे जो भी टाइम टेबल है, आप बना देना है कि 2.5 घंटे जैसे जैसे मंडे क्या पढ़ेंगे? पहला स्लॉट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्लॉट में मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ेंगे, सेकंड में मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे, थर्ड में करंट अफेयर्स हो गया, फोर्थ में सीसैट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कुछ और भी हो सकता है। और हो सकता है बीच में टाइम बच भी जाए, पाँचों स्लॉट का भी टाइम बच जाता है, क्योंकि बहुत सारा टाइम होता है लोगों के पास। तो उसको यू कैन इट्स योर ओन, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है, वो आप उसमें अपने में देखिए, अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे तो सिर्फ 4 स्लॉट का चाहिए, चाहे वो 2.5 घंटे का हो, चाहे 3 घंटे का हो। ठीक है? तो ये बना लेना है। फिर आप 6 दिन बाद मतलब 5 दिन 6 दिन पढ़ेंगे, on the 7th डे यू विल राइट ऑन द टेस्ट, आप टेस्ट लिखेंगे। टेस्ट में जो मार्क्स आता है वो उनको बताएँगे। टेक्स्ट में क्या होगा कि आप 2 घंटे टेस्ट लिखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस चलेगा 3-4 घंटा चलेगा, है ना? तो पहला जो टेस्ट होगा, जो टेस्ट लिखेंगे, तो जो ईज़ी क्वेश्चन्स होंगे वो आप करेंगे फर्स्ट राउंड में। वो मोटा-मोटी, है ना? वही मैंने बताया, फर्स्ट राउंड ईज़ी क्वेश्चन, सेकंड में थोड़ा मॉडरेट एंड थर्ड में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन्स हैं। तो इन जनरल यू विल फाइंड इट 100 क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता चलेगा कि अराउंड 35 टू 40 क्वेश्चंस आर ईज़ी वन। ईज़ी है तो आपको टिक मारा और आपको मालूम चल गया वो आंसर सही निकला। नेक्स्ट जो होता है 35 टू 40 क्वेश्चन होंगे मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जिसमें 2 एलिमिनेट किए, 2 रह गए। तो कभी सही हुए, कभी गलत हो गए। तो वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस है, जिसमें डाउट रहता है या इन्फॉर्मेशन कम रहता है या सब मिसिंग लिंक होता है, जो मिस हो गया, नहीं कर गए तो वो क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये हुए 30 35 से 40 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का। उसको एनालिसिस करते समय उसके क्वेश्चन को 1 स्टार मार्क कर लेना है, 1 स्टार, क्योंकि मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हैं। क्योंकि ये सब ये उसमें जो क्वेश्चन का जो कंटेंट होगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा, उसको अंडरलाइन हाइलाइट कर लेना है। फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, यानी 15 टू 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन वो होंगे जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आपके नॉलेज से बाहर है, नया चीज़ है या उसमें एकदम ही डिफरेंट चीज़ है या बहुत हल्का-फुल्का पता था, नहीं मालूम है, उसको आंसर नहीं कर पा रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को 2 स्टार मार्क कर लेना है, उसका अंडरलाइन हाइलाइट कर लेना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। और इफ यू इवन यू वांट टू रिविजिट द बुक, उस टॉपिक को लेके, तो आप रिविजिट भी कर लो, जैसे आज़ाद हिंद फौज का पूछ लिया, ठीक है? या कुछ भी पूछ लिया, है ना? वो आपको लगता है कि नहीं, किताब में एक बार देख लें स्ट्रक्चर में क्या लिखा है।
तो जस्ट गो थ्रू द स्पेक्ट्रम आल्सो, और वो कंटेंट जो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन पार्ट उसको भी देख लेना, दोनों देख लेना, ठीक है। और वो क्वेश्चन 2 स्टार और 1 स्टार के जो क्वेश्चन है दैट विल बी टेकन एज अ रिवीजन मटेरियल बिफोर द एग्जामिनेशन। एक 15 दिन पहले होगा सेकंड रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन होगा 45 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। वो मैं फिर से बताऊंगा जब डेट आने वाला होगा, ठीक है। जैसे मैंने उसका डेट फिक्स कर रखा, मान लीजिए आपका जो जो लगभग क्या या जो आपका होगा पहला रिवीजन वो होगा अप्रैल के महीने में, लगभग मिड ऑफ अप्रैल, और सेकंड रिवीजन जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा, या सेकंड वीक ऑफ मई में होगा, ठीक है, सेकंड में होगा। तो ये ताकि वो पूरा कर लेंगे आप, 2 बार रिवीजन हो गया, तो वो क्वेश्चन जो गलत हुए, यानी 1 स्टार 2 स्टार क्वेश्चन जो गलत हुए आपके, वो ईज़िली आप एग्जामिनेशन में मिलते-जुलते क्वेश्चन आएंगे, आप ठीक कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे सही, वो तो आपके ठीक ही रहेंगे ऐसे भी। तो 1 स्टार क्वेश्चन और 2 स्टार को ही रिवीजन करना है, बाकी जो पहले राउंड में सही हो गए 35-40 क्वेश्चन उसको रिवीजन नहीं करना है। बस उसको अपने नॉलेज के लिए आपको पढ़ना था, एक्सप्लेनेशन पार्ट पढ़ लिए, कोई नया चीज़ है तो हाइलाइट कर। सो यही है 1 स्टार 2 स्टार क्वेश्चंस, और उसका स्लॉट्स मैंने बता दिया, तो सारा चीज़ जो मैंने बताया था पिछले हफ्ते, है ना, वो इसमें कवर मैंने कर लिया। ठीक है मोनिका? इसको देख लेना, ठीक है? ये मैंने ऑलरेडी लिख के भेजा है चैनल उसमें ग्रुप में, है ना? कुछ-कुछ लिखा है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और आप लोगों को कोई भी इश्यू प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर लिया करो, ठीक है? या व्हाट्सएप या मैसेज कर लिया करो, तो कोई डाउट हो तो उसमें वहीं 1 टू 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यही चीज़ है, और कोई क्वेरी हो तो बताइए? क्योंकि इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वाले वेबिनार में कि कैसे पढ़ना है, वो तो बहुत हो गया, आप लोग पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। अब देन हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, कैसे-कैसे क्या करना है, उस पे आ जाएँगे। अच्छा क्वेरी नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट संडे होगा, बी प्रिपेयर फॉर इट, और तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। सेंड मी द टाइम टेबल जो आपने बनाया चारों स्लॉट का, विद द 2 हफ्ते के बाद, मतलब 2 टेस्ट लिखना है आपको 1 हफ्ते बाद, हर 7th डे। तो उसके लिए रेडी रहिए। शून आईएएस का मैंने ऑलरेडी लॉगिन आईडी दे दिया है, सीसेट वाला भी मैं उनसे मंगा लेता हूँ। उसके अलावा भी यू वांट टू सॉल्व सम अदर क्वेश्चन पेपर आप कर सकते हैं, है ना? वो भी आप देख सकते हैं, लाइक क्या विजन आईएएस वगैरह का। ओके देन, थैंक यू ऑल, थैंक्स ऑल, एंड स्टे कनेक्टेड एंड स्टार्ट रखिए तैयारी अपनी। कोई डाउट तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।